میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے، آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا، اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج تک، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیل نو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ٹیل نو، سینٹینس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ٹیل نو یہ وہی کہ وہی رہے گا، وچ مین آج تک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے، I haven't lied to you till now، I haven't lied to you till now۔ haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے۔ آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا، you haven't said once till now، you haven't said once till now۔ haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے۔ اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا، he has not seen Lahore till now۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، یعنی ہر سینٹینس میں جیسا میں کہتا ہوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز آئی سے۔ ایز آئی سے مین جیسا میں کہتا ہوں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ایز آئی سے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، do as I say، do as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو، write as I say، write as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو، speak as I say، speak as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ، tell him as I say۔ خبردار اگر کچھ کہا تو، خبردار اگر اس سے بات کی تو، خبردار اگر مجھے کال کیا تو، خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار، یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر۔ بیویئر مین خبردار۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ خبردار اگر کچھ کہا تو، beware if you say something، beware if you say something۔ خبردار اگر اس سے بات کی تو، beware if you talk to him، beware if you talk to him۔ خبردار اگر مجھے کال کیا تو، beware if you call me، beware if you call me۔ خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو، beware if you go out to play۔ اور کتنا شاپنگ کرو گے تم، اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اور کتنا یا اور کتنے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور۔ ہاؤ مچ مور یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاؤ مینی مور یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو پھر آخر میں کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں۔ How many more months will we have to tolerate him؟ How many more months
will we have to tolerate him. आप भी ऐसे जुमले बआसानी इस फार्मूले की मदद से अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। और कितने दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। How many more days will we have to wait. How many more days will we have to wait. और कितना परेशान करोगे तुम हमें। How much more will you trouble us. How much more will you trouble us. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में। और कितना वक़्त लगाएगी वो यहाँ आने में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, मुझे बताने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, उसे बुलाने का क्या लोगे। उसे बुलाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे। यहाँ से जाने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है। तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं चाहता हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसकी इज्जत की जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ वांट, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ वांट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़िए। इसके बाद टू बी, और टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। मैं चाहता हूँ यह फर्स्ट पार्ट है कि मुझे पसंद किया जाए,
ये सेकंड पार्ट है। आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, आई वॉन्ट मीन मैं चाहता हूँ, टू बी लाइक्ड कि मुझे पसंद किया जाए। यहाँ के लिए कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि उसकी इज़्ज़त की जाए, यानी मैं चाहता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है कि उसकी इज़्ज़त की जाए यानी उसकी रिस्पेक्ट की जाए। आई वॉन्ट हर टू बी रिस्पेक्टेड, आई वॉन्ट हर टू बी रिस्पेक्टेड, आई वॉन्ट मीन मैं चाहता हूँ हर, अब ये ऑब्जेक्ट है, रिस्पेक्टेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। इसके लिए कोई लफ्ज़ कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होगा इंग्लिश में। मैं चाहता हूँ कि उसकी इज़्ज़त की जाए, आई वॉन्ट हर टू बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड, आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि यह कपड़े धुल जाए, मैं चाहता हूँ, यह फर्स्ट पार्ट है कि ये कपड़े धुल जाए, ये दूसरा पार्ट है। आई वॉन्ट दिस क्लोथ्स टू बी वॉश्ड, आई वॉन्ट दिस क्लोथ्स टू बी वॉश्ड, आई वॉन्ट मीन मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, दिस क्लोथ्स टू बी वॉश्ड कि ये कपड़े धुल जाएं। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सज़ा दी जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सज़ा दी जाए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बार बार यहाँ मत आओ, बार बार मुझे फ़ोन मत करना, बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर एंड ओवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर एंड ओवर। सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस को समझने के लिए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओवर एंड ओवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर, डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर, डोंट कम हियर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विच मीन यहाँ मत आओ, ओवर एंड ओवर मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मुझे फ़ोन मत करना, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर, डोंट कॉल मी मीन मुझे फ़ोन मत करना, ओवर एंड ओवर बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, बार बार आप एक ही गलती करते हो, बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शो, शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो।
अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस। शो मी योर हाउस में ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर। शो हर द वेडिंग पिक्चर, हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लेस। शो देम सिटिंग प्लेस, देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ। मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, शो मी योर वॉच। शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपनी दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी जिसको जरंड भी कहा जाता है प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले
معاملے میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پڑھائی کے معاملے میں تم زیرو ہو. ان ٹرمز آف اسٹڈی یو آر پور. ان ٹرمز آف اسٹڈنگ یو آر پور. کھیلنے کے معاملے میں تم بہت آگے ہو. ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ. ان ٹرمز آف پلینگ یو آر ویری شارپ. پیسہ کمانے کے معاملے میں میری قسمت اچھی نہیں ہے. ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک. ان ٹرمز آف ارننگ منی آئی ہیو بیڈ لک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنے صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. میں اپنی صحت کے معاملے میں بے پرواہ ہوں. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. ان ٹرمز آف مائی ہیلتھ آئی ایم کیئرلیس. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھانا پکانے کے معاملے میں وہ اچھی ہے. کھانا پکانے کے معاملے میں وہ اچھی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ ایور پلس سینٹینس پلس کاما پلس واز رائٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس نے جو بھی کہا وہ صحیح تھا. وٹ ایور ہی سیڈ واز رائٹ. وٹ ایور ہی سیڈ واز رائٹ. میں نے جو بھی سوچا وہ صحیح تھا. وٹ ایور آئی تھوٹ واز رائٹ. وٹ ایور آئی تھوٹ واز رائٹ. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. وٹ ایور یو ڈیڈ واز رائٹ. سمجھو چلا گیا. سمجھو ہو گیا. سمجھو بول دیا. سمجھو بتا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. کنسیڈر مین سمجھو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سمجھو چلا گیا. کنسیڈریٹ گون. کنسیڈریٹ گون. سمجھو ہو گیا. کنسیڈریٹ ڈن. کنسیڈریٹ ڈن. سمجھو بول دیا. کنسیڈریٹ اسپوکن. کنسیڈریٹ اسپوکن. سمجھو بتا دیا. کنسیڈریٹ ٹولڈ. کنسیڈریٹ ٹولڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھو سیکھ گیا. سمجھو سیکھ گیا. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے. انگریزی سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے. تم سے بات کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس امپورٹنٹ ٹو. یہ اٹس کا شارٹ فارم ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می اس یو ہم ہر دم پلس ٹو پلس B1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں. وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے یعنی وہاں جانا میرے لیے اہم ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو گو دیئر. اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو گو دیئر. اٹس امپورٹنٹ ٹو مین ضروری ہے. گو یہ V1 ہے. دیٹ مین جانا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. انگریزی سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے یعنی انگریزی سیکھنا تمہارے لیے اہم ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو لرن انگلش. اٹس امپورٹنٹ ٹو یو ٹو لرن انگلش. لرن مین سیکھنا. یو یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم سے بات کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو ہم ٹو ٹاک ٹو یو. اٹس امپورٹنٹ ٹو ہم ٹو ٹاک ٹو یو. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے.
پیسہ کمانا میرے لیے ضروری ہے، یعنی پیسہ کمانا میرے لیے اہم ہے، پیسہ کمانا میرے لیے ضروری ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو ارن منی. اٹس امپورٹنٹ ٹو می ٹو ارن منی. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، ارن یہ وی ون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین کمانا، منی مین پیسے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں رکنا تمہارے لیے ضروری ہے.